India to reconsider and withdraw the following 3 ordinances and propose Electricity Amendment Bill 220 forthwith. The Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Ordinance of 220. The Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farmers Services Ordinance 220 and the Essential Commodities Amendment Ordinance 220. Even though the concerns and sentiments of the House were conveyed to the Prime Minister through 3 letters which I addressed to the Prime Minister. पहला मैं चिट्ठी लिखी जुलाई जून के साढ़े व्यूज ने ये नहीं होना चाहता ऑर्डिनेंस विड्रॉ करो। जुलाई में हाउस की सिटिंग तो बाद मैं हाउस के व्यूज उन्होंने दसिया और तीसरी और जुलाई जो सितंबर में मैं एक और चिट्ठी लिखी उन्होंने कि आप तुसी नहीं कर रहे कि जिन्हां बड़ा हालात अच्छे नहीं होते जाते और इस देश के बीच through letter number so and so, given as Chief Minister of Punjab and Chief Minister of Punjab, I wrote to him. The Government of India converted these ordinances to acts and notified the same as follows. फिर उन्होंने अपने 3 बिल बनाया. These 3 legislations, along with proposed Electricity Amendment Bill 220, are clearly against the interest of the farmers and landless workers. And unprecedented agricultural market system established not only in Punjab but also in the original Green Revolution areas of Punjab, Haryana and Western UP. Clearly the Government of India has enacted legislations and not farm legislation, as the Constitution will show when I will speak mention them. These are also against the Constitution of India, Article 14 is 2, which comprises agriculture as a subject of the state. These legislations are direct attack and act of subterfuge to improve upon the function and the power of the state inside the country's constitution. In the opposite background, the Assembly is constrained to unanimously reject these 3 legislations and the proposed Electricity Amendment 220. It once again urges upon the Government of India to not only to annul these legislations, but also promulgate a fresh ordinance making the procurement of food grains on the minimum support price a statutory right of the farmers and continue with the procurement by Government of India through the FCI and other such agencies. A message, एक resolution रखना चाहते हैं for discussion at any time. आपने हम क्या है कि मैं बिल पेश करा? मैं इन्हों पेश कराता हूँ मैं। ओके। सरकारी मता प्रस्ताव पेश किया गया कि राज की विधान सभा भारत सरकार हुणे जहे घड़े कथित खेती कानून बारे किसानां दीयां चिंतावां दे हल नूं लैके अपनाए कठोर बेतर्क वतीरे प्रति डूंगा खेद प्रगट करती है। विधान सभा ने मिति 28 अगस्त 2020 नूं एक मते राही भारत सरकार नूं जोर दे के कहा सी कि वो निम्नलिखित आर्डीनेंसां अते प्रस्तावित बिजली सोध बिल 2020 नूं मुड़ विचार के तुरंत वापस लवे। द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020, द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020 एंड एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 भावें कि पंजाब विधान सभा के सदन दीयां चिंतावां अते जज्बातां तो भारत के प्रधानमंत्री जी नूं मुख मंत्री पंजाब वालों उन्होंने पत्र नंबर CMO कांफी 2020/635 मिति 14 सितंबर 2020 राही जानू कराया गया थी। फिर भी भारत सरकार ने उपरोक्त आर्डीनेंसां नूं कानूनां विच तब्दील करके हेठ अनुसार अधिसूचित कर दिता। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020 24 सितंबर 2020, द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 24 सितंबर 2020 एंड द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 26 सितंबर 2020 प्रस्तावित बिजली शोध बिल 2020 समेत ये तिन्ने कानून
ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਬਲਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਐਂਟਰੀ 14 ਲਿਸਟ 2 ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਲਾਵੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ। स्पीकर साहब, मैं आपको पेश करता हूँ कि पहला था फॉर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन स्पेशल प्रोविजन में पंजाब अमेंडमेंट बिल 220। दूजा फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस पॉलिसी स्पेशल प्रोविजन में पंजाब अमेंडमेंट बिल 220। और तीसरा एसेंशियल कमोडिटी स्पेशल प्रोविजन में पंजाब अमेंडमेंट बिल 220। मैं आपको ये बेनती करना है कि ये बिल तुरंत ये पास किए जाए। प्रस्ताव पेश किया गया। एक जी जी ਉਹ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਆਈ ਨੋ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ related ਹੈ। ਪੀਸੀ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। just एक मिनट बैठो। The farmer produce trade and commerce promotion and facilitation special provision and Punjab Amendment Bill 2020, the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Special Provisions and Punjab Amendment Bill 2020 and the Essential Commodities Special Provisions and Punjab Amendment Bill 2020 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਭੀ ਸੇ। Speaker Sir, I present the Code of Civil Procedure, Punjab Amendment Bill 2020. Sir, I propose that the Code of Civil Procedure, Punjab Amendment Bill 2020 should be considered immediately. ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਆਫ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਨਾ ਬਿੱਲ 2020 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ 4 ਐਕਟ ਆਏ ਤੇ ਹੈ ਸੇਮ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵੀ, ਜੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। सीएम साहब। है जी बिल्कुल 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 तुम अपनी लिस्ट भेजो जी थोड़ी लिस्ट आई है चाहिए कर लांगे वैसे ही हो जाना बोलते बता दें मैं थोड़ा होर ज्यादा कर अद्धे तो ज्यादा कर दें अद्धे तो ज्यादा कर दें तो बारे ज्यादा बुला दें पहला कोई गल
जब तक नहीं कोई तौहीन नहीं है। हाँ जी स्पीकर साहब इस तरह करो, ट्रेजरी बेंचेस को ਤੁਸੀਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਸੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜੀ ਹਾਊਸ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। सीएम साहब बैठो 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 सीएम साहब बोल रहे हैं, सुनो बैठो प्लीज बैठो। चीमा साहब प्लीज बैठो, चीमा साहब बड़ा सेंसिटिव इशू है, प्लीज बैठो। हाँ सीएम साहब। स्पीकर साहब कदों तो ये गल चल रही है, मेरा ख्याल कई साल हो गए हैं जिसके रिश्तेदार ये डिस्कशन चल रही है नहीं बिल बदले लेट मी स्टार्ट विद शांतक। पहला था साडी गवर्नमेंट ने दिल्ली स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट बनाया विच इज हियर, और स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट बीजेपी ने अपने मैनीफेस्टो में भी पाई सी कि असं जब आवेंगे असं इंप्लीमेंट करेंगे, फिर जब आ गए फिर इन्होंने की और फिर उन्होंने अपना शानदार कमीशन की रिपोर्ट भी बना दी, रिपोर्ट बना दी है। आई जस्ट वांट टू मेंशन हियर कि ये चीज़ा था शानदार कमेटी रिपोर्ट हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर मेरा ख्याल कई साल हो गए हैं। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट ये 2006 फाइनल रिपोर्ट इन्होंने आई थी एंड समिंग अप देखिए इन्होंने कि इकनॉमिक्स उन्होंने कहा कि जेडे अपने खर्चे खुर्चे ने बढ़ रहे हैं, इनपुट प्राइस होएगा पर्टिकुलरली डीजल प्राइस बढ़ रहे हैं और ये 2006 की गल है। वाइल आउटपुट प्राइसेस आर नॉट कीपिंग अप द राइज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाली लिख की गल कर रहे हैं कि वो लिंक भी नाल होनी चाहिए। The minimum support price should not only continue but should be listed with the wholesale price index। और उन्होंने फिर किया मार्केट रिफॉर्म से भी इन्होंने कुछ जिक्र किया। नवी 2006 की गल, फिर उस तो बाद इन्होंने कहा था बीजेपी ने असं अपने मैनीफेस्टो पावे जो आ गए, फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये लागू नहीं कर सकते, लेकिन असी शांतक कमेटी शांतक कुमार जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उन्होंने अधीन असी कमेटी बनाई जिसकी रिपोर्ट 2015 के आ चुकी सी। उहदे विच इन्होंने आ रिपोर्ट है शांतक कुमार की एंड ही हैज सेड क्लीयरली इहदे विच कि MSP हटा दो, इसका बड़ा नुकसान है। FCI शुड नॉट बी देयर, जिहड़ा देश में बड़ा नुकसान है। फ्री ट्रेड कर दो वगैरह जेदे ते सब कुछ लेके आए। नाउ आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता इस गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनया सी, संविधान बनया साडे हिंदुस्तान का। उस संविधान के अधीन कुछ सब्जेक्ट्स ने विच आर स्टेट सब्जेक्ट्स, सम आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट्स, और स्टेट सब्जेक्ट्स एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया इस मुल्क को, जिन्हें सारे कॉन्स्टिट्यूशन फादर्स जैसे डॉक्टर अम्बेडकर जी ने चेयरमैन की उस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और ये सारे जो फेडरल स्ट्रक्चर बनया कई सारे स्टेटा कई अधिकार से कि तुसी अपने आप कानून बेस पे बढ़ाओ, एक करके दूसरा तीजा करके खत्म कर ले। GST की गल देखी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बैठे, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी गई थी कि सारी टैक्सेशन हुन विल बी डन बाय थ्रू द GST प्रोसेस एंड वी गिव अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दैट एवरी 3 मंथ्स, हर 3 महीने बाद जो स्टेट्स को पैसे देने ने वो देते जाएंगे। कितने हो गए महीने? 7 महीने। 7 महीने अब कितना पैसा पंजाब को ड्यू है? 9,000 करोड़ सानू ड्यू है। वेयर आर द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी? तुसी पावर साथ तो लेना, फिर तुसी उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं करते। दिस इज वन, ये एक चीज है। लेकिन दूजा खेती बाड़ी इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इट कम्स हियर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस कॉन्स्टिट्यूशन दे विच एंट्री 14 दे विच इट इज स्टेट सब्जेक्ट। तो एंट्री 14 इन्होंने इग्नोर करता, विच इज क्लियरली
एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस नाल और 28 ने मार्केटां नूं रखना है वो भी रद्द करता इन्हां ने आर्टिकल सेक्शन 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ 33 मीन ट्रेड इज एग्रीकल्चरल ट्रेड ट्रेड हो सकती है जी तुम खरीद और फरोख्त करते हो तुम मंडियां मुंडियां के बाहर पास जाके अपनी चीज़ों को खरीदते हो बेचते हो लेकिन आ ट्रेड तो नहीं कि जेड़ा कोई मेहनत करके खेती करके बीज बो के फिर हाड़ी जो फसल त्यागे हारवेस्ट करता है वाढ़ी लाता है वो ट्रेड है तुसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिस तरीके सोचते हो यू मेक इट आउट इन सच अ वे कि तुम कन्विंस अपने आप को तुसी कर लो पर दुनिया को कन्विंस नहीं तुसी कर सकते हाउ कैन एग्रीकल्चर अगर मैं हम आके उत्थे मटर बीजना है और मटर दे मैं बीजना एज ए किसान और मैं मटर फिर खरीदना अपने 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 बाग को मैं तोड़ना एंड आई यूज इट कुछ मैं शायद ज़्यादा मटर हो मैं शायद डिप्टी स्पीकर साहब को भेजता या मैं अपने वास्ते कुछ रखना दैट इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस व्हिच आई एम सेलिंग नॉट ट्रेड तो एक ट्रेड नो अंडर सेक्शन 33 हाउ दे हैव ब्रॉट इट मैं नहीं समझाऊंगी पहले एक्सप्लेन करें जब लोग सी कि बहस करो पार्लियामेंट से बहस कराई व्हाई डिडंट यू बहस क्यों नहीं कर बहस कराओ दे और दस दे कि एक सेक्शन 33 दे अंदर आया बट वो बहस उन्होंने पता सी कि बहस वास्ते दे नो लेग्स टू स्टैंड ऑन ठीक है कि उत्थे लोक सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਇਹ ਕੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਫਿਰ ਇਹ ਸਦਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आई फाइंड दिस वेरी स्ट्रेंज और मैंने ये समझ आती है इन्हों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की की सोच है और कैसे चलना चाहती है और बीजेपी पार्टी की सोच आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी एल्स आई ब्लेम बीजेपी लोग कहेंगे कि कहो कि जी फलाना उत्थे बैठा सी ऑर्डिनेंस के विच बैठा सी या नहीं बैठा सी आई दीज आर माइनर थिंग्स आई वांट टू नो कि तुसी जेड़े ये कानून बनाया कैसे बनाया नंबर 1 सेकंडली तुसी ये नहीं सोच रहे कि इस पंजाब की किसानी ने जब PM 480 लग्या सी उरे आई थिंक इट वाज 50 सम टाइम जदों इथों असी बैली बोलना झोली अड्ड के असी जाके कणक अपने लोगों वास्ते मंगते से चौल या कणक खाण वास्ते उदों तुसीं अमेरिका नाल PM 480 की 10 मिलियन टन तुसीं इंपोर्ट किया अपना फीड ताकि इतने कोई काल ना आ जाए लोग भुखे ना मरन लग जाए देश फिर उन क्या निका जा पंजाब 1.17% साड़ी धरती हिंदुस्तान 2% तो घट सारे लोग और उन्होंने उठ के पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने नवी कणक मंगाई मैक्सीको तो आए कणक वो वर्क किया फिर तुम चौल अपने फिलीपीन्स वो वर्क किया और 4 सालों के 66 तो लैके 10 सालों के अन्न बाहर मंगवाने की लोड़ नहीं पई साडे पंजाब ने हिंदुस्तान लोग भुखे मरन तो असीं 70 साल साडा काम चलता रहा नवीं फसलां आईयां मेहनत की कणक की धुप के कम की मर ठंड उत्थे जदों बिल्कुल कोई बाहर जाके थोड़े पैर सुन हो जाते थे उदों अपने काम किया और करके उन्होंने जाके हिंदुस्तान अपने अपने अन्न खवा के अपने देश को बचाया भुल गए इस किस्म के कैलस एटीट्यूड है सरकार की कि जो मेहनत होती थी साढ़े पंजाबियों ने 70 साल तुम भुल गए मैं अपने पंजाबियों ने नहीं हरियाणे वाले यूपी वेस्ट वाले हुमता क्यों करती है इन्होंने क्योंकि थोड़ा गंगा जमुना बेसन डिवेलप हो गया उत्थे चौल की पैदावार हो गई मध्य प्रदेश के कणक होने लग कावेरी बेसन नर्मदा बेसन सारे डिवेलप हो गए उत्थे चौल की पैदावार हो गई तो चलो पंजाब को मारो पंजाब को खत्म करो पंजाब को ये इंसाफ है आई वुड लाइक द प्राइम मिनिस्टर टू टेल मी ये इंसाफ है ये बड़ी अफसोस की गल है मैनू कि जदों तुसीं लोगों को वरते हो इत्थे पंजाब की तपी है जिहड़ी अज बॉर्डर पर बैठी है और लोगों को उत्थे साडे हिंदुस्तान की गल कर रही है कदे कोई गया है उत्थे सियाचिन दे विच ऑलमोस्ट 22,000 फुट ते और उत्थे साडे उत्थे जवान बैठे सारी हिंदुस्तान की फौज
ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ कैसे जिएंगे, साढ़े मापे बैठे ने, साढ़े बच्चे बैठे ने, कैसे जिएंगे, ये की कर रही है गवर्नमेंट के विच। मैं रहा 16,000 फुट पे, पर वो तो भी मैंने पता सी मुश्किल नाल साह होता सी, 22,000 फुट के लोग बैठे ने। चीन का सारा बॉर्डर 2,000 किलोमीटर सारा पीर पंजाबी जो पाकिस्तान के नाल लगता है, सियाचिन ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਲੰਘਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ। ਔਰ ਇਹ 1.5% 7%, 57% ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ 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 ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਅਨਈਜ਼ੀ, ਆਈ ਵੈਰੀ ਅਪਸੈਟ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਰਵੀ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕੋਵਿਡ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਰੋਕ ਦਿਓ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20-10 ਅੱਗੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। GVK ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਲਹਿਰਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਕੋਲਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਇਹਦੇ ਸਪੋਂਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦਣ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਮਨੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੋਨਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? We have to, if we have to buy, we can't buy. आज कोड़ा खरीद के रख लेते क्यों नहीं रखा क्योंकि they don't get जरा जिन्ना कोड़ा सीखने दिन तो चल रही है बड़ा खत्म हो गया। 8-10-15 दिन का स्टॉक होता है, इसको ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो एक होता एक दैट प्लीज मैं किसान अपने वीरां नूं बेनती करदा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਕੀਲੇ ਦਲ ਤੱਕ ਖੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਸਾਊਸ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕੀਲੇ ਦਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੇਗੋਕ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਈਏ ਆਪਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 10% ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 10% ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟਾਕਸ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੋਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਝੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉੱਥੋਂ। तो ये सारिया चीज़ा हम देखते हैं पंजाब की इकॉनमी का पता 40,000 करोड़ का सारा नुकसान हो गया इंडस्ट्री में।
वी कैनॉट अफोर्ड दिस, ये पहली गल है। और दूसरी गल मैं कहना चाहते मैं क्या सी पहला कि लोग कुछ कह देने कि तुम ये गल्लां क्यों करते हो, करनियां पैंदियां ने, पर मैं औखी घड़ी दे विच पंजाब देखिया। मैं देखिया जो 35,000 पंजाबी इतने उन्हें घूम डुलिया सी पंजाब। मैं नहीं चाहता कि एक काम फेल हो गए। और साडा गुआढ़ी मुल्क कोई मौका नहीं छड्डदा जदों ताईं इत्थे आके कोई रौला नहीं पाउंदे। मैं जानना आई होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ, मैनू पता है कि कुछ हथियार आते हैं, कैसे आते हैं, किन्ने ड्रोन आते हैं, किन्ने आ चुके, किन्ने हथियार ने, किन्ने टेररिस्ट फड़े ने, किन्ने असी गैंगस्टर जो टेररिस्टा उन्होंने असी कि फड़िया, सब कुछ देखे। और ये जरा अगर यदा हल नहीं निकलता ये मूवमेंट बढ़ेगी, करेगी नहीं। यही होया 1984 यही होया 90 कितने बंदे शहीद किए हैं। आप चाहते हैं कि आबहवा खराब हो सकता है, कौन होगा इंडस्ट्री लैके अज ये 3 सालों के 7,000 करोड़ रुपया पंजाब की इन्वेस्टमेंट आया है, जो लोग लेके आए हैं। उन्हें कहते हो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये आए वो धरती के ऊपर लग रहा है साडा इंडस्ट्री। देखो किन्ने इतने साड़ी इकोनॉमी की तरफ किस तरीके इंक्रीज करेगी, साड़ियाँ देखो किन्ने नौकरियों के साधन बनेंगे, उन्होंने आपको सोचना पड़ेगा। स्पीकर साहब ये बहुत जरूरी है कि इस काम को आप रोके। पाकिस्तान नहीं हटेगा। और मैं तुम्हें हो दस नहीं करता, चाइना और पाकिस्तान कोलूजन है। चाइना हो 20 बिलियन डॉलर आके कुंजरे पास से है जितों कारगर मायने आ रही है, एक टनल सोने बढ़ाए और ट्रेन लेके जाएंगे अप टू द ग्वादर पोर्ट। उन्होंने इकोनॉमिक अटैचमेंट पाकिस्तान ऐनी होगी कि जब झगड़ा होगा दोनों मुल्क इकट्ठे होंगे। डू वी वांट दैट? डू वी वांट ऐसी बॉर्डर स्टेट है कितना आप आए सकावेंगे अपना वी देयरफॉर ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ हो सकता है अगर ये जी मूवमेंट जी आप कणक की गल कर रहे हैं, अपनी बिजाई की गल कर रहे हैं, वहाँ की मंडिया की गल कर रहे हैं, अगर लोगों को ये नहीं पता कि असी ये साडा कितना नुकसान होगा और फिर उस नौजवान उठना और इस मूवमेंट के हिस्सा बनना, फिर दसो पंजाब का रख के देश का कहना तो ये जरूरी है कि नैशनल सिक्योरिटी को भी सेंटर की गवर्नमेंट को देखना पड़े। नेशनल सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट और पंजाब को जो रोल है, एक तो बॉर्डर स्टेट है और एक सारी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द आर्म्ड फोर्सेस साडी बहुत है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि असी इस गल को नेशनल सिक्योरिटी को सामने रखते हुए बहुत जेडे मेरे को फैक्ट्स एंड फिगर्स आए हैं, दे आर नॉट स्मॉल फिगर्स, इन फैक्ट एंड फिगर्स को पता है। अगर एक प्रपोज कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्रपोज कर रही है कि एमएसपी का कॉस्ट अबॉलिश करो सब कुछ, फिर किसानों का जो सारे इकोनॉमिस्ट ने बड़ी फुर्ती नाल अपना अपने कटे ने हाल तक टाइम लगूगा तो फिर दसेंगे कि असी किसान 11,000 करोड़ रुपये का साडा नुकसान हो है पंजाब के किसानी वास्ते। और साड़ी मंडी बोर्ड है वह 4 को लेकर 5 लाख रुपये नुकसान है और मंडी बोर्ड बगैर पिंडा की डिवेलपमेंट नहीं होनी, ना तो लिंक रोड बने ना पिंडा की डिवेलपमेंट होनी, फिर कैसे चलेगा साਡਾ पंजाब। तो इन्होंने कहता कि असं है कोई मंडी बोर्ड होनी नहीं देवानी। तीसरी गल फर्टिलाइजर, उन कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने क्या है कि फर्टिलाइजर को हम आप जी सबसिडी देने वो कट के हर किसान को हर फसल वास्ते 2,500 रुपया दे, 2,500 रुपये पूरी फसल की फल जिन्ना फर्टिलाइजर सानू चाहिए। और जी फर्टिलाइजर की प्रेजेंट की पंजाब कंज्यूम्स 6.25 फर्टिलाइजर जो देश के बिक रहे और वो सब्सिडी 5,000 करोड़ है
आउट ऑफ टोटल एनुअल फर्टिलाइजर सब्सिडी 80,000 करोड़ 80,000 करोड़ है पूरे देश की फर्टिलाइजर सब्सिडी और पंजाब की 5,000 करोड़ पंजाब की इंटाइटलमेंट ये हम उस हिसाब से कट के 800 करोड़ है विच इज 4,000 crore loss to the Punjab farm. It will increase the cost of cultivation by 4,000 rupees per acre. Now, ये हाले लोगों ने मन च आईया नहीं गल्लां पर आउणियां पर ये साडा काम इस कदम दा है ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ तो ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੇਰੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇੱਕ समय आ गया पंजाब में इकट्ठा होना पो और अपने किसानी नाल खड़ना पाओ खड़े पता है ये हम खड़ा है आपा कानून किया वी हैव टू फेस इट सेंटर ने बंद करिए ना करे तो गवर्नर साहब देंगे पर परमिशन पता नहीं देंगे या नहीं देंगे ना दे फिर ये जाना पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति जी देंगे या नहीं देंगे ये नहीं कहना समझ लेकिन असी वी विल फाइट दिस इस बैटल में लड़ जावांगे हर अदालत के एक बात आप मैं आपके राही दसना चाहूँगा साउथ में मैं बहुत कुछ देखे अपनी जिंदगी के लिए 52 साल हो गए जदों ब्लू स्टार होया उदों मैं इस्तीफा दिता पार्लियामेंट मैं लोकसभा मैं समझना दो चीज़ा होंदियां ने जिहदे नाल आप हमारे किसी देश की बिगड़ सकती है किसी सरकार की बिगड़ सकती है और देश की बिगड़ सकती है एक धार्मिक टकराओ और एक अगर तुम किसी के पेट पे तुम गप मारो अज पेट से पाई जा रही है मैं उदों इस्तीफा दिता फिर बरनाला सरकार वैसी एग्रीकल्चर देहाती विकास का वजीर उदों भी मैं इस्तीफा दिता जब उन्होंने बैठ खंडन किया मैनू इस्तीफा देना कोई नहीं मेरा इस्तीफा तो आप दिया जो मर्जी मैं अपने वास्ते मैनू कटना चाहते हैं मैनू कट लें मैनू को दवाई मेरी सरकार आई हैव नो प्रॉब्लम ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਜਾਣੇ ਕਰਦੇ लेकिन बेइंसाफी जो हुई है सभी किसानों नाल जिस तरीके मिलते इन्होंने किए ने जिस तरीके गरीबों का पेट से तुम गत मारे हो अमरिंदर सिंह के सामने सिर नहीं झुकाओ सरदार नवजोत सिंह सिद्धू मानयोग स्पीकर साहब मैं सिंह साहब को बधाई देना चाहना रात की नहीं देखी है स्पीकर साहब 17 वो नहीं करता अज के विधान सभा का सैशन बुलाने का सीएम साहब का निर्णय ये इस काले कानूनों की काली रात के सितारे वांग चमक रहा है और सच पुछो अज सारी विधान सभा जो सीएम साहब का निर्णय है सेंटर की सरकार के काले कानूनों के मुंह के उत्ते चपेट बन के और इस चपेट की गूंज पूरे हिंदुस्तान के गई है पूरे हिंदुस्तान के गई है कि तुम मेहनत का शुभ वक्त के सटिया ऐसा फरामोश और एक